Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious friends, मेरे अति प्रिय मित्रों, welcome to the presence of the living God. जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है. Every time people shed tears at the feet of the Lord, हर बार जब लोग प्रभु यीशु के चरणों में आंसू बहाते हैं, many times they think, where are my tears going? तो वे कई बार सोचते हैं कि मेरे आंसू कहाँ जा रहे हैं. But they must realize that their tears are washing the feet of Jesus. एक चीज उन्हें इस बात को जानना और महसूस करना है कि उनके आंसू यीशु के कदमों को पोंछ रहे, धो रहे हैं. One thing is to shed tears for themselves. अपने लिए आंसू बहाना जो है वो एक अलग बात है. Another thing is to shed tears of thanksgiving to God. लेकिन ये एक अलग बात होती है जब हम धन्यवाद के लिए यीशु के सामने आंसू बहाएं. That is real worship. और यही सच्ची आराधना है. And that tears doesn't come from me, Paul Dinakaran, or you. It comes because of the love of God that is poured by the Holy Spirit. और ये जो आंसू है मुझ पॉल दिनाकरण या आपके द्वारा नहीं आते, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में उंडेला गया है वो बाहर निकलते हैं. Romans 5:5. रोमियो 5:5 के अनुसार When the Holy Spirit fills us with that love and the gratitude to God, we cry, and that is worship. जब पवित्र आत्मा हमें उस प्रेम और कृतज्ञता से परमेश्वर के प्रति भर देता है तो हम आंसुओं के साथ उसकी आराधना करते हैं. And those tears wash the feet of Jesus और Christ. वे आंसू प्रभु यीशु मसीह के कदमों को धोते हैं. That is worship. और वही आराधना है. I have spoken about that in a church. Let's go and listen to it. और इसके बारे में मैंने कलीसिया में उपदेश दिया है. आइए चले उससे सुने. This morning, the Lord asked me to give you the promise found in Genesis 12 and verse 2. आज परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं आपको उत्पत्ति 12 वचन 2 में दिए गए उस प्रतिज्ञा के बारे में बताऊं. Here God says, यहाँ परमेश्वर कहता है, I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा. The Lord says, प्रभु कहता है, you will be a blessing. आप एक आशीष का कारण होंगे. Every one of you will be a blessing. आप में से हर एक आशीष बनेंगे. And He will make your name great आपके नाम को महान करेगा and He will bless you. और वो आपको आशीष देगा. If you read John chapter 12 and verse 3, अगर आप यूहन्ना 12 वचन 3 को पढ़ें there was a rich Pharisee who invited him. तो एक धनी फरीसी था जिसने उसको आमंत्रण दिया था. Disciples of Jesus were all enjoying the feast. प्रभु यीशु मसीह के चेले सब भोज का आनंद ले रहे थे. But there was one lady who came behind Jesus. लेकिन एक स्त्री थी जो यीशु के पीछे आई. One ordinary lady. एक सामान्य औरत, But it was that lady लेकिन यही स्त्री थी who came and shed tears at the feet of Jesus. जिसने आकर के यीशु के कदमों पर आंसू बहाए. Her tears fell upon the feet of Jesus. उसके आंसू यीशु के कदमों पर गिरने लगे And it wet his feet. और उसके पांवों को उसने गीला कर दिया. It cleaned his feet. उसके पांवों को उसने साफ कर दिया. Then she poured a costly ointment on his feet. उसके बाद उसके पांवों पर उसने बड़ा ही कीमती इत्र मला. She anointed his feet. उसने उसके पांवों का अभिषेक किया. Of course, the fragrance of that balm, the ointment spread all over the house. निश्चय ही उस इत्र की जो खुशबू थी वो पूरे घर के अंदर में फैल गई. One side, the Pharisee was criticizing her, saying she's a sinner. एक तरफ फरीसी जो थे वो निंदा कर रहे थे कि वो एक पापिनी है.
On the other side, the disciples were criticizing her for the money she gave to Jesus, for the offering she gave to Jesus. और दूसरी ओर जो चेले थे वो उस स्त्री की निंदा कर रहे थे उस दान के कारण से जो उसने यीशु के पीछे बहाया। They criticized her for honoring Jesus with all that she had. उसके पास जो कुछ भी था उसके साथ यीशु का आदर करने के लिए वो उसकी निंदा कर रहे थे। That is the world. यही है संसार। Maybe today the world is saying the same thing about हो you. सकता है आज संसार जो है आपके बारे में यही कह रहा है। As that lady poured the costly ointment on Jesus, जैसे उस स्त्री ने यीशु पर कीमती इत्र को मला, the Bible says the whole house was full of the smell of perfume. बाइबल कहती है कि जो पूरा घर था वो उसके इत्र की खुशबू से भर गया। Everywhere there was perfume. चारों ओर उसकी खुशबू फैली थी। Perfume smell was brought by this lady's sacrifice. इस इत्र की जो खुशबू है वो उसके बलिदान के द्वारा से लाई गई थी। Even in your home, आपके घर में भी as you have loved the Lord, जैसे आपने प्रभु से प्रेम किया है, this costly perfume will spread all over your house. यह जो कीमती इत्र है आपके घर के चहुओर फैलेगा। Oh, there will be perfume smell all over your house. आपके घर के चारों ओर इत्र की खुशबू होगी। Perfume makes our hearts to rejoice. इत्र की खुशबू हमारे हृदय को प्रफुल्लित करती है। Yes, you are bringing perfume into your whole family. हाँ, आप पूरे घराने में उस खुशबू को लेकर आ रहे हैं। As you are pouring the perfume on Jesus at his feet all the time through your righteous life, you are bringing the perfume into your family, into your whole house. जब आप अपने धर्मी जीवन के द्वारा से यीशु के कदमों में उसके उस इत्र को ला रहे हैं तो अपने परिवार में आप उसकी खुशबू को लेकर के आ रहे हैं। That perfume smell will turn all the sorrow, all the darkness, all the bad smell of sin into a glorious aroma to God. और वो जो खुशबू इत्र की वो आपके हर एक अंधकार को, आपके सड़न को, आपके दुखों को दूर करके परमेश्वर की खुशबू को ले आएगी वहां। Yes, as a wife is sanctified and falls at the feet of Jesus and lives a righteous life, the husband receives that aroma and is जब एक sanctified. पत्नी जो पश्चाताप करती है अपने पापों से यीशु के चरणों में गिरती है तो वो जो है एक खुशबू को लाती है और वो उसके पति के जीवन को सुगंधित करता है। 1 Corinthians 7:14 says so. पहला कुरिन्ती 7 उसका वचन 14 जो है ऐसा ही कहता है। And again, when the parents live a righteous life, Malachi 2:15 says, the children become godly children. मलाकी 2:15 कहती है कि जब माता पिता एक धर्मी जीवन को जीते हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो जो है परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय और अनमोल होते हैं। And the children become signs and wonders in Israel, according to Isaiah 8:18. और यशायाह 8:18 के अनुसार से इस्राएल में जो बच्चे होते हैं वो तो एक चिन्ह और चमत्कार ठहरते हैं। And as a family, you begin to serve the Lord, according to Joshua 24:15. यहोशू 24:15 के अनुसार से आप परिवार के रूप में परमेश्वर की सेवा करने लगते हैं। Yes, my dear friends, हाँ मेरे प्रिय मित्रों, you are bringing a perfume to the feet of Jesus. आप यीशु के कदमों में एक इत्र को लेकर के आ रहे हैं। And because of that, your whole family will have the perfume filled in your house. और उसके कारण से आपके पूरे घर में परिवार में जो है खुशबू जो है फैल जाएगी। Because Jesus will be walking with that perfume that you put upon him all over your house. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है जो आप उसके ऊपर में इत्र डालेंगे उसको लेकर के आपके पूरे घर में चलता फिरता रहेगा। 2 Corinthians 6:16 and 18 says, दूसरा कुरिन्थियों 6:16 और 18 कहता है, the Lord says, I will dwell amongst you. प्रभु कहता है मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा, I will walk amongst you. मैं तुम्हारे बीच चला फिरा करूंगा। As you have put perfume on me, I'll walk in your home, walk in your family, and everywhere that perfume will go, and you will be my sons and daughters as I am a father to you. जब तुमने मेरे ऊपर में इत्र मला है तो मैं तुम्हारे घर में चाहूं और चलूंगा, मैं वहां निवास करूंगा और तुम मेरे संतान ठहरोगे और मैं तुम्हारे घर को अपनी खुशबू से पूरी तरह भर दूंगा। Amen. आमीन, Amen. आमीन। All of you in your family will have only one perfume smell, the perfume smell which is on Jesus Christ. आप में से हर एक अपने घर में एक ही खुशबू पाएंगे, वह खुशबू जो यीशु के ऊपर है। Nothing, no smell of the world, no smell of the devil shall ever be seen in any of you in this ministry and any of you in your family. ना तो संसार का और ना पाप का कोई दुर्गंध जो है आपके ऊपर होगा, ना आपकी सेवकाई के ऊपर होगा। इसके बाद अब ऐसा नहीं होगा। Many years ago, कई साल पहले की बात है, in 1972, God enabled us to have a house.
in Chennai for the very first time. 1972 में परमेश्वर ने पहली बार चेन्नई में हमें घर देने के लिए समर्थ किया। My father got a loan from the State Bank of India where he was working. मेरे पिता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक लोन लिया जहां वो कार्यरत थे। Until then, we were living only in the bank quarters. उसके पहले हम बैंक के ही भवनों में रहते थे। My grandmother and grandfather came to live with us after my grandfather's retirement. मेरे दादा के रिटायरमेंट के बाद मेरे दादा दादी हमारे साथ रहने के लिए आए। And my grandmother said, और मेरी जो दादी थी उनने ये कहा, looking at my father, मेरे पिता को देखकर, "Hey Dinakaran, when are you going to give me my own house, man? ए दिनाकरण, तुम मुझे अपना खुद का मकान दोगे रे? How long are you going to put me in the bank quarters? तुम मुझे कब तक बैंक के घरों में ही रखते रहोगे? I must have my own house. मेरा अपना खुद का घर होना चाहिए। Give me my own house." मुझे अपना खुद का मकान दो। In fact, she wanted her son to have his own house. वास्तव में वो चाहती थी कि उनका जो बेटा है उसका अपना खुद का मकान हो। Then only my father's eyes opened. और तब मेरे पिता की आंखें जो थी वो खुल गईं। Exactly at that time, the bank announced a scheme for all the officers to have special loan. और उसी समय बैंक ने जो था एक घोषणा की कि वे अपने अफसरों के लिए एक विशेष लोन देंगे। The loan was at low interest. और यह जो था बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पर था। They promoted a colony, उनने एक कॉलोनी को बढ़ाया and my parents chose the smallest house, smallest 2-bedroom house, because they could afford only that. और मेरे माता पिता ने जो सबसे छोटा 2 बेडरूम का घर था उसको चुना क्योंकि वो केवल उतने के लिए सक्षम थे। But in that colony, there were 2 houses which had to be built on large plots. लेकिन उस कॉलोनी में 2 घर थे जिन्हें कि बड़े बड़े प्लॉट्स में बनाना था। They didn't know whom to give it to. और वो नहीं जानते थे कि वो उसे किसको दें। So finally they said, we'll cast lots for all the members of this society. आखिर में उन्होंने कहा हम सोसाइटी के हर एक सदस्य के नाम से इसके नाम में चिट्ठी डालें। And when they cast the lots, और जब उन्हें चिट्ठी डाली it fell on my father's तो name. वो मेरे पिताजी के नाम निकली। The biggest house in the colony. कॉलोनी में जो सबसे बड़ा मकान था वो पिता के नाम निकला। Don't clap, आप तालियां ना बजाएं because he had to pay more money for that big house. क्योंकि उनको उस बड़े घर के लिए कहीं ज्यादा पैसे चुकाने थे। Instead of clapping and smiling as you did with joy, my father began to cry. मेरे पिता जो थे जैसे आप न मुस्कुराए वैसे नहीं मुस्कुराए न तालियां बजाए लेकिन वो रोने लगे। I don't know how to repay the loan for the small house itself. Now they have put the big house on my head. उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता छोटे मकान के लिए मैं कैसे लोन चुकाऊं। उन्होंने ये बड़ा घर अब मेरे सिर पर मढ़ दिया। That was a 3-bedroom house. और वो जो था 3 बेडरूम का एक मकान था। And it was correct, और सही था because my parents needed 1 room, my grandparents needed 1 room, and the other room, the Lord knew that we are going to start the Jesus Calls office in the other room. क्योंकि मेरे दादा दादी को एक कमरा चाहिए था, मेरे माता पिता को एक कमरा चाहिए था और वो बिल्कुल सही था क्योंकि यीशु को मालूम था कि इस अगले कमरे में हम यीशु लाता सेवकाई को जो है प्रारंभ करने जा रहे हैं। My sister and myself were small children, so we didn't need a room. क्योंकि मैं और मेरी बहन बड़े छोटे थे तो हमें अलग कमरे की आवश्यकता न But थी। the Lord knew that He had to launch the Jesus Calls office in our house. लेकिन प्रभु जानता था कि उन्हें यीशु बुलाता है का कार्यालय जो था वो हमारे घरों में ही शुरू करना था। So the Lord made the Lord to come to my father. तो प्रभु ने ऐसा किया कि वो जो चिट्ठी थी वो मेरे पिताजी के नाम ही My निकली। father was crying, "How can I repay the loan for this bigger house?" मेरे पिता रो रहे थे इस बड़े घर के लिए मैं कैसे इस लोन को चुकाऊंगा। So he went to all the president and the secretary of the association and said, "Can you change this, please?" तो उन्हें जा करके जितने भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे एसोसिएशन से कहा कि आप इसे बदल सकते He हैं। didn't have the money because most of the money that he was earning, he was spending it for the ministry. He was putting his personal money and preaching everywhere. क्योंकि उस समय उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, जो भी वो पैसा आता था वो अपने सेवकाई में खर्च करते थे। But when he went to the president and the secretary of the association, लेकिन जब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के पास गए they said, "You're a fool. उन्होंने कहा अरे तुम मूर्ख हो, We are all crying that this house did not fall for us. हम तो ये पछता रहे हैं कि वो हमारे नाम क्यों नहीं आया। Take it, Dinakaran. दिनाकरण से ले लो, If you want, we will give you the money to pay for this." अगर तुम्हें चाहिए तो हम इसे चुकाने के लिए पैसे हम तुम्हें देंगे। Everybody loved him हर एक उनसे प्रेम करते थे because he was a good officer to everybody, helping them in the transfer and so on. क्योंकि वो बड़े अच्छे अधिकारी थे, हर एक की सहायता करते थे स्थानांतरण आदि में। Yes, my friends, not only should we stop with preaching, but we should also love our people with whom we are working and help them also in their personal lives.
That will reflect Jesus through our lives. हाँ मेरे मित्रों, न केवल हमें प्रचार करके बस संतोष करना चाहिए, लेकिन जो हमारे साथ लोग कार्य करते हैं उनके साथ यीशु के प्रेम को बांटना चाहिए। वही जो हमारे जीवन के द्वारा से झलकेगा और लोग जानेंगे कि हम क्या हैं। The people in the colony did not know my father as a preacher at that time. They knew him only as a good officer of the state bank. उन दिनों में कॉलोनी के लोग नहीं जानते थे कि मेरे पिता जो है एक प्रचारक भी है, उसे एक अच्छे अधिकारी के रूप में वो जरूर जानते थे। But then we got the biggest house. लेकिन तब हमें सबसे बड़ा मकान मिला। It was nearly 1,200 square feet. वो लगभग 1200 स्क्वायर फीट का था। For us, it was a mansion at that time. उन दिनों में वो तो हमारे लिए एक बड़े महल की तरह था। And as we entered into that house, और जब हमने उस घर के अंदर प्रवेश किया, every morning, हर एक सुबह 6 o'clock, 6 बजे my grandfather will wake up at 5 o'clock and then 6 o'clock he'll begin to sing. मेरे दादा जो थे 5 बजे उठ जाते और 6 बजे वो गाना शुरू करते। Immediately my parents, myself, everyone will jump and go to the hall. तत्काल ही मैं, मेरे माता पिता सब भाग करके हॉल में जाते And we would begin to sing. और हम सब गाना शुरू करते। Every day seek God. हर दिन हम परमेश्वर को खोजते थे And slowly, और धीरे से one by one, एक के बाद ही people started coming to our house from outside, लोग जो थे बाहर से हमारे घर में आने लगे प्रातः, asking my father to pray. मेरे पिता से प्रार्थना की लालसा, And the crowds began to grow. और भीड़ जो थी बढ़ने लगी। Everyone in the colony saw this. हर एक ने जो कॉलोनी में थे उसे They देखा। said, there's something in this house. उन्होंने कहा कि इस घर में कुछ तो है, Something in this इस house. घर में कुछ तो है। After Mr. Dinakaran took this house, दिनाकरण ने जब से इस घर को लिया उसके a बाद divine peace has come upon the whole colony. पूरी कॉलोनी में एक ईश्वरीय शांति जो है वो छा गई है। People are coming from all over and they are going with joy from this house. सारे जहां से लोग आते हैं और इस घर से वो बड़े आनंद के साथ निकलते हैं। There's something in this family. इस परिवार में कुछ तो है। And one by one they started coming. और एक के बाद वे जो है वहां आने लगे। And everyone in the colony began to be blessed by God through my father's prayers. और मेरे पिता के प्रार्थनाओं के द्वारा कॉलोनी का हर एक जन जो था आशीषित होने लगा। He never stood in the street and preached. वो कभी भी अब सड़क पर खड़े होकर के प्रचार नहीं करते, But the fragrance of Christ in the family began to spread all over the colony. लेकिन परिवार में यीशु की जो खुशबू थी वो पूरी कॉलोनी के अंदर में फैलने लगी। Yes, my friend, हाँ मेरे मित्रों, your fragrance, आपकी खुशबू through the fragrance of Christ who is with you, आपके साथ जो मसीह है उसकी खुशबू के will साथ spread all over your family. आपके पूरे परिवार में फैल जाएगी। And that fragrance will spread to other people और also. वो खुशबू जो है और लोगों के बीच भी फैलेगी। And Jesus says, और यीशु कहता है, wherever you go, I will come with you. तुम जहां कहीं जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, I will never leave you. तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, I will never forsake ना you. कभी तुम्हें त्यागूंगा। Hebrews 13 and verse 5 इब्रानी 13:5 and Joshua 1:9 और यहोशू 1:9 and Matthew 28:20. मत्ती 28 और 20 में I am with you वो always. कहता है हमेशा मैं तुम्हारे साथ When you हूँ। go to the office, जब तुम ऑफिस जाओ, when you go to the shop, जब तुम दुकान जाओ, when you go to the market, जब तुम बाजार जाओ, everywhere I am going to come with you. मैं हर जगह तुम्हारे साथ साथ आऊंगा। As you have anointed me all the time, my fragrance will come with you everywhere. जब तुमने हमेशा मेरा अभिषेक किया है, मेरी खुशबू हमेशा तुम्हारे साथ In रहेगी। your office, my fragrance will be smelling so sweetly through you. तुम्हारे द्वारा तुम्हारे कार्यालय में मेरी जो खुशबू है वो फैलती जाएगी। As you anoint me every day in prayer, Bible reading, and family fellowship, the fragrance, my fragrance, which you are giving me, will come with you, and it will make the whole place smell, and they will honor you for the perfume. जब तुम अपने पारिवारिक आराधना प्रार्थना के द्वारा से मेरा अभिषेक करोगे तो मेरी जो खुशबू है वो जो है तुम्हारे द्वारा से तुम्हारे परिवार में चाहूं और इस तरह से फैलती चली जाएगी। In every place you go, जहां कहीं भी तुम जाओगे, Zephaniah 3:19 says, सपन्या 3:19 कहता है, wherever you have gone through जहां shame, कहीं आपको शर्म से गुजरना पड़ा, I am going to give you praise and honor. वो कहता है मैं तुम्हें आदर और महिमा दूंगा। They will smell the perfume of Jesus in you, वो आप में यीशु की खुशबू को सूंघेंगे, and they will praise you. आपकी प्रशंसा करेंगे, The people will honor लोग you. आपका आदर करेंगे, The world will
will honor you. संसार आपका आदर You करेगा, will get honorable marks. आपको बड़े आदरणीय अंक मिलेंगे, There will be profit in your business. आपके व्यवसाय में लाभ होगा, Blessing in your job. आपके कार्य में आशीष होगी, Everybody will praise हर you. एक आपकी प्रशंसा करेंगे, Everybody will honor हर एक you. आपका आदर करेंगे। In the same way, in the ministry also, He'll do it for you. वैसे ही सेवकाई में भी वो आपके लिए यही करेगा। The perfume that you have put upon Jesus will come with you and give you praise and honor. जो सुगंध आपने यीशु को दी है वो आपके साथ आकर के आपको आदर देगा। Days of praise and honor are coming to you. आपके लिए प्रशंसा और आदर के दिन जो है आ रहे हैं। Won't you rejoice? क्या आप आनंद मनाएंगे? Shall we shout a big hallelujah to Jesus? आइए यीशु के लिए जोर से कहें हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। No more shame. अब कोई शर्म नहीं, Only praise and honor. केवल प्रशंसा और आदर, Only praise and केवल honor. प्रशंसा और आदर होगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय जो है व्याकुल न हो। Shall we ask God to give those tears of gratitude to worship Him with that? आइए हम परमेश्वर से मांग करें कि परमेश्वर हमें ऐसे ही कृतज्ञता के आंसू दे ताकि हम उसके द्वारा उसकी आराधना करने पाएं। Father, we pray that you will give them tears of gratitude. पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें कृतज्ञता के आंसू देंगे, Gratitude for forgiving their sins. उनके पापों को जो आपने क्षमा किया उसके लिए कृतज्ञता, Gratitude for doing miracles for them. उनके लिए चमत्कार जो आपने किए उसके लिए कृतज्ञता, Gratitude for calling them as your children and your उन्हें servants. अपनी संतान और सेवक कह करके पुकारने के लिए इसलिए उनकी कृतज्ञता। As that lady shed tears at your feet and washed your feet with gratitude, give them a heart of gratitude to wash your feet with your tears. जैसे उस स्त्री ने बड़ी कृतज्ञता के साथ आपके कदमों को अपने आंसुओं से पोंछा धोया, वैसे ही हर एक को प्रभु जी आप कृतज्ञता के आंसू। Not only asking things for themselves, but let them start crying to thank you for what you have done for them. ये नहीं कि वो केवल अपने लिए बस मांगते रहें, लेकिन आपने जो उनके लिए किया उसके लिए वो आपके प्रति कृतज्ञ हो प्रभु जी। Change their attitude, Lord. आप उनकी भावनाओं को बदल दें। Let them start crying with tears, thanking you for what you have already done. आपने जो उनके लिए पहले किया है प्रभु जी उसके कारण वो कृतज्ञता के साथ आंसुओं को बहाने लगे। And as they do that, जब वो ऐसा करेंगे, honor them before all people. हर एक के सामने आप उनका आदर करें प्रभु, Honor them before their family. उनके परिवारों के सामने उनका आदर करें। Let them see your wonders. वे आपके चमत्कारों को देखें, Let them see miracles. वे आश्चर्य कर्मों को देखें। Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद ऐसा करने के लिए प्रभु जी, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Let them never shed any personal tears anymore. अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई आंसू बहाना न पड़े प्रभु। Let your healing from your wounds in your feet bring health and healing to them. आपके कदमों के घाव जो हैं वो उनके जीवनों में प्रभु जी अब चंगाइयों को लेकर के आ रहे हैं। Thank you for giving us such a heart today. धन्यवाद आज हमें ऐसा हृदय देने के लिए Always being grateful. कि हम हमेशा आपके प्रति कृतज्ञ रहें। We love you, हम Lord. आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। मेरा नाम गौरी है और मेरी शादी को 7 साल हो गए। 5 दिसंबर 2004 को मेरी शादी हुई थी। आज पूरे नेट 8 साल हो गए हैं, पर 7 साल तक हमारे कोई बच्चा नहीं था। मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, उन्होंने ट्यूब बंद बताई, काफ़ी उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला, लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन भी किया और वैसे भी कई जांचें हुई, पर फिर भी कोई रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा था। फिर हमारे जैसे हम टीवी में प्रोग्राम देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि ये सब अपनी एडवर्टाइज के लिए कर रहे हैं। फिर एक दिन ऐसे ही प्रभु जी ने मन फिराया तो हमारे पड़ोस में एक चर्च है, हमें पता भी नहीं था। मेरे हस्बैंड वैसे ही ढूंढते चले गए। फिर किसी ने बताया और इधर कनाट प्लेस में ही प्रार्थना भवन है, तो हमने जैसे अब परफेक्ट एड्रेस तो पता नहीं था, किसी ने बताया तो मेरे हस्बैंड ढूंढ के इधर आए। हमने इधर भी प्रेयर करवाई। जरा सोचिए, अगर कोई है जिसे हम 24 घंटे पूरे साल के 12 महीने बात कर सकते हैं, कोई है जो पूरे भार से हमारे लिए प्रार्थना करता हो और परमेश्वर के चमत्कारों को हम तक पहुंचाता हो। यीशु बुलाता है कि प्रार्थना भवन में परमेश्वर के योद्धा बड़ी ही इच्छुकता के साथ आपकी सेवा करने के लिए अपेक्षा कर रहे हैं। उसके ठीक 2 महीने बाद मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। प्रभु जी ने मेरे को बेटा दिया है, 10 महीने का बेटा है। तो प्रभु जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। और 6 साल से मेरे हस्बैंड का कोर्ट केस चल रहा था, अभी 2 महीने पहले ही वो निपटा है। वो लोग कप्तान कुछ लाख रुपए कितने पैसे मांग रहे थे, पर प्रभु जी ने कोई पैसा नहीं लगवाया, सिर्फ वकील की फीस वगैरह, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो फ्री में ही केस निपट गया। प्रभु को मैं इसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ।
पर हमारे घर में काफ़ी कलेश रहता था। वो प्रभु जी ने उसके लिए शांति की, प्रभु जी को उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। अब हम फैमिली हैं, हम परिवार प्रेम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। बस प्रभु जी को अपना जीवन सौंप दिया है, प्रभु जी जैसे चाहे वैसे चले। प्रभु जी को धन्यवाद देते। तो दर्शकों, जैसा आज आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने यीशु बुलाता है सेवकाई के द्वारा उनके जीवन में महान आशीषें दी और समाज में प्रतिष्ठित किया है। आप भी ऐसी ही आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यीशु बुलाता है कि सेवकाइयों के बारे में और जानकारी के लिए तथा अपने दान भेजने हेतु आप निम्न पते पर संपर्क करें। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजाजी सालाई, चेन्नई 600001, या आप इसे इंटरनेट के माध्यम से हमारी सुरक्षित वेबसाइट के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jesuscalls.org। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से आपने आशीष पाई होगी। हम चाहेंगे कि आप हमें अपने विचार, अनुभव व गवाहियाँ स्क्रीन पर दिए गए पते पर भेजें।